So today in Newton's laws of motion we are going to start apparent weight of a body in elevator. एलिवेटर के अंदर एक बॉडी का एपरेंट वेट क्या होगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं. So we may have three different situations. Let's understand one by one. We are drawing three different situations for elevator. The first condition may be elevator going upward or elevator accelerating upward with acceleration A. Second situation may be elevator accelerating downward with acceleration A. And third situation may be elevator moving upward or downward with constant velocity V. So in this case, acceleration is 0. So what happens in such cases? Let's understand. If elevator is going upward with acceleration A, and if a block of mass m is kept here, mass m, इसका free body diagram बनाते हैं, मतलब we will show all the forces which are acting on this body. तो नीचे mg है, ऊपर normal reaction है, and also acceleration A is upward. तो जब भी इस तरह के equations लिखते हैं, and whenever we have to write the equation of motion for this, Newton's laws of motion for this, तो ध्यान रखना चाहिए कि whatever is the direction of acceleration, that direction we should take as positive and the opposite one we should take as negative. क्यों ऐसा करना चाहिए? ऐसा करने से आसान हो जाता है, that's it, और कोई बात नहीं. तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, देन नॉर्मल रिएक्शन n is positive, mg is negative force, this is the net force acting on the body, and this is equal to mass into acceleration. So what is the normal reaction in this case? Normal reaction is mg plus a. ये normal reaction किस तरह से related है weight से, that we will try to understand. But first we want to find normal reaction in all these three cases. Here in the second case, block of mass m, the downward force is mg and upward force is normal reaction n. Acceleration is downward, तो नीचे वाला डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, ऊपर वाले डायरेक्शन का फोर्स नेगेटिव. We will write mg minus n equals to mass into acceleration. So normal reaction comes out to be mg minus a. इसका एक बहुत स्पेशल केस है कि अगर a का वैल्यू इसमें g हो जाए, then normal reaction becomes 0. And in the third case, when velocity is constant, acceleration is 0, then whatever be the condition, mg नीचे, normal ऊपर, acceleration अगर 0 हो, तो कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, कोई एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, doesn't matter. तो उस केस में F rate जो होगा वो 0 आएगा, because acceleration is 0. So normal reaction comes out to be mg. And this is what we experience. ये हम लोग experience करते हैं day to day life में. जैसे अगर आप एलिवेटर में खड़े हो और अब जैसे ही आप स्विच ऑन किए, it starts moving upward, तो उस समय आपको थोड़ा भारी भारी लगेगा, आपको लगेगा कि आपका वेट बढ़ गया है. इनफैक्ट अगर आप वेइंग मशीन रख दें, then you will experience that weighing machine आपका ज्यादा वेट दिखा रहा है. वेइंग मशीन कैसे वेट मेजर करता है, that is what we have to understand here, क्योंकि apparent वेट की बात हो रही है. ऐसे तो एक्चुअल वेट तो आपके बॉडी में जो मैटर कंटेंट है वो मास हो गया, उसमें g मल्टीप्लाई किए, that is your actual weight. लेकिन apparently वो वेट बढ़ या घट सकता है इन एलिवेटर, क्योंकि वेइंग मशीन जो मेजर करता है हमारा मास या हमारा वेट मेजर करता है,
वो g से डिवाइड कर देता है, उसमें इस तरह से हमने मैकेनिज्म लगा रखा है दैट इट डिवाइड्स बाय g और आपको मास का वैल्यू देता है, दैट्स व्हाई इट गिव्स यू इन kg। लेकिन एक्चुअली उसमें जो काम हो रहा होता है वो इस तरह का होता है कि अगर आप खड़े हैं, सपोज आप खड़े हैं, आप जितना उस पर फोर्स लगाइएगा उतना ही से वो दबेगा, उसको तो उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो आप उस पर कितना फोर्स लगाइएगा, द फोर्स यू विल अप्लाई ऑन द वेइंग मशीन विल बी इक्वल टू द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द वेइंग मशीन ऑन यू। अब वेइंग मशीन आप पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है इस केस में ज्यादा है, आप देख सकते हैं। अगर आप ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे वेइंग मशीन ज्यादा दिखाएगा, अगर वेइंग आप कम नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे वेइंग मशीन कम मास आपका शो करेगा। तो बेसिकली वेइंग मशीन या खुद हमको भी जो एक्सपीरियंस होता है अपना वेट, दैट वी एक्सपीरियंस ओनली बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एक बड़े बिल्डिंग से आपके पैर के नीचे वेइंग मशीन लगा दें और उछाल दिया जाए तो क्या होगा। उस समय अगर आप अपने फियर को ओवरकम करके एक बार वेइंग मशीन की तरफ ध्यान दें तो वो जीरो दिखा रहा हो, क्योंकि आप जितने एक्सीलरेशन से फॉल हो रहे हैं उतने ही एक्सीलरेशन से वेइंग मशीन फॉल हो रहा है। तो लिटरली देयर इज नो real contact between you and your weighing machine. So you are not applying any force on weighing machine. Weighing machine is not applying any force on you. As a result, there is no force being applied, and hence weighing machine is not showing any weight of yours. तो बेसिकली वेइंग मशीन या हमको भी सेंस होता है वहां पे वेटलेसनेस, हम या वेइंग मशीन जो वेट मेजर करते हैं या सेंस करते हैं दैट इज एक्सक्लूसिवली ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। तो जब ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, टू एक्सेलरेट द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन mg, तभी ऊपर एक्सेलरेट होगा। आपको किसी बॉडी को एक्सेलरेट करना है इन वन डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होना चाहिए mg से। और दैट्स व्हाई जब वो ऊपर जाना जस्ट शुरू होता है उस समय आपको भारी भारी सा लगता है, लेकिन एक बार जब वो अपना कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर लेता है, क्योंकि जब शुरू होता है ना उस समय उसका स्पीड जीरो रहता है और जीरो से कुछ वेलोसिटी आ रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज सम एक्सीलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो उसकी वजह से बढ़ा हुआ नॉर्मल रिएक्शन लगता है, दैट्स व्हाई यू फील हेवियर। और उस समय अगर वेइंग मशीन रखा जाए तो वो वेइंग मशीन भी आपका हेवी वेट शो करेगा, तो अपरेंटली आपका वेट बढ़ जाएगा इन दिस केस। वहीं जब आप नीचे आ रहे होंगे तो यू विल फील फॉर अ व्हाइल, जब वो स्टार्ट होगा नीचे आना तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा वेट कम, हल्का हल्का लग रहा है। तो वेट वो कम इसलिए लग रहा है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हैज रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट, है ना। mg जो एक्चुअली आपका वेट था उससे रिड्यूस हो गया, mg माइनस a हो गया। और उसी एक्सीलरेशन को अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दिया जाए तो आपका नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है और वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। जो मैंने एग्जांपल दिया वो भी वही एग्जांपल है, एक बड़े बिल्डिंग से रिलीज कर दिया जाए किसी आदमी को, नीचे वेइंग मशीन हो, वेइंग मशीन विल शो जीरो रीडिंग, कोई मास नहीं कोई वेट नहीं, बिकॉज वो वेटलेसनेस का सिचुएशन होगा। आपको खुद भी बहुत हल्का फील होगा, बहुत वेटलेसनेस फील होगा। बाद में क्या होगा ये अलग मैटर है ना, डू नॉट इमेजिन दैट। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना होता है, ऐसा भी होता है जब लिफ्ट में आप ऊपर जा रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में भारी लगता है बाद में नॉर्मल लगता है, व्हाई, बिकॉज नाउ इट हैज अटेन्ड सम वेलोसिटी, और कुछ वेलोसिटी जब इसने अटेन कर लिया है तो अब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, एंड वंस दैट वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट एक्सीलरेशन बिकम्स जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के इक्वल होगा। तो नॉर्मली जैसा आपको फील होता है वैसा ही फील होता है। So this is how we describe the apparent weight of a body in an elevator. I hope you have understood. Please copy this much, then we will proceed to the next topic. Okay, so now we start the next topic, and that is conservation of momentum.
Just a minute. So now we will start the next topic, and that is conservation of momentum. Conservation of momentum. क्या होता है conservation of momentum? Let's understand. We will prove it from Newton's third law. Suppose we have many bodies interacting with each other, है ना, बहुत सारे bodies हैं जो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या इंडिविजुअली उनका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा? यस, उनका मोमेंटम इंडिविजुअली चेंज हो रहा होगा. इसका P1 मोमेंटम चेंज होगा, यस. P2 मोमेंटम चेंज होगा, यस. P3 मोमेंटम चेंज होगा, यस. P4 मोमेंटम चेंज होगा, यस. बट क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, then in that case what will happen? Then in that case we will have total momentum of the entire system conserved. हमारा जो total momentum of the entire system है that will remain conserved. Total momentum मतलब P1 will change, yes. P2 will change, yes. P3 will change, yes. P4 will change, yes. But their sum will change, no. It will remain constant. So this is what we call conservation of momentum. So for a system जिसपे कोई external unbalanced force act नहीं करे, in that case total momentum of the system remains conserved. So basically no external unbalanced force. जब कोई भी external unbalanced force act नहीं करेगा, in that case total momentum of the system of particles will remain conserved. अब इसको दो पार्टिकल के लिए हम लोग प्रूफ कर सकते हैं using Newton's third law. Suppose we have particle 1 interacting with particle 2, ठीक है, particle 1 interacting with particle 2. So we know कि एक पे फोर्स लगा है ना, F12, और दूसरे पे फोर्स लगा F21. One is force on 1 due to 2 और दूसरा जो है वो force on 2 due to 1 है. So if we write them as action reaction pairs, so F12 plus F21 will be equal to 0 होगा. And we know कि ये F12 जो है, this is responsible for rate of change of momentum of particle 1. Particle 1 के momentum के rate of change के बराबर होगा. और इसको देखें तो this will be rate of change of momentum of particle 2 upon dt equals to 0. This means what? This means differentiation of total momentum P1 plus P2 is equals to 0. और अगर किसी चीज का मोमेंटम मतलब किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 हो, it means that should be a constant value. So it means P1 plus P2 is constant. And if it is constant, obviously आप delta P1 plus delta P2 को 0 लिख सकते हैं. You can write delta P1 plus delta P2, दोनों का टोटल चेंज जो होगा that will be 0. और वैसा अगर लिखते हैं तो what you should be able to write, देखिए delta P1 को क्या लिख सकते हैं, M1 V1 minus U1. Can we write this? Yes, this is change in momentum for first particle. Delta P2 को क्या लिख सकते हैं, M2 into V2 minus U2. This is change in momentum for the second particle equals to 0. Where we have assumed कि U1 is initial velocity of M1, U2 is initial velocity of M2, V1 is initial velocity of final velocity of M1, and V2 is final velocity of M2, and hence what we can write, U1 वालों को एक साथ रख लो, M1 U1
प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2. ये so this is conservation of momentum that we have seen. I hope it is clear to everyone. Please note this down, then we will proceed to the next topic. Okay, so this is all about conservation of momentum. We have proved it. Now this is the time to discuss some of the very important terms, some of the very important applications of conservation of momentum. जैसे बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे, you must be knowing some part of it. Let's discuss them one by one. For example, the first one is recoil of gun. If you talk about the recoil of gun, then obviously you can derive the relation with the speed with which the gun recoils. Suppose I fire a bullet. Bullet has some mass small m and the gun will have some mass capital M. Initially they were at rest, so initial total momentum was 0. If it comes out with v1 speed, it will go back with v2 speed. But we will assume कि both are in positive direction. वो अपने आप negative आ जाएगा, showing that it is in opposite direction. So m v1 plus capital M v2. So the recoil speed of the gun comes out to be v2 equals to minus small m by capital M into v1. तो recoil of gun क्या होता है उसको समझिए. जब हम लोग बुलेट फायर करते हैं तो इनिशियली टोटल मोमेंटम 0 था. बाद में जब बुलेट फायर हुआ, बुलेट आगे निकलता है, तो उस पूरे सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है. किसी ने बुलेट को धक्का मार के आगे नहीं बढ़ाया, इस गन ने उस पे फोर्स लगाया. तो गन भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ बुलेट. यस, एंड दैट्स व्हाई गन रिकॉइल्स. गन विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन और ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिकॉइल करेंगे. एक दूसरे को क्या, बुलेट तो आगे बढ़ ही गया, गन रिकॉइल कर जाएगा. एंड दैट्स व्हाई आप देखते होंगे कि बड़ा अगर गन रहता है तो उसको बहुत टाइटली होल्ड करना पड़ता है ना. अगर आप उसको चलाते हुए देखे होंगे तो उसको बहुत टाइटली होल्ड करना होता है, अदरवाइज इट विल बैकफायर, है ना. पीछे की ओर वो धक्का दे देगा. ठीक, बैकफायर इज ऑल्सो अ डिफरेंट वर्ड, बट वो पीछे की ओर धक्का देगा और डिसबैलेंस हो जाएगा. जो पर्सन गन चला रहा है, ही विल बिकम डिसबैलेंस्ड. तो ये दो चीजें हो गई. उसके अलावा बोट का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं. अगर आप बोट पे हैं तो बोट पे आप एक काम करें कि आप खड़े हैं बोट पे और मान लीजिए कि किनारा थोड़ा दूर है बस, और आप वहां से कूद जाएं उस पे. तो व्हाट विल यू एक्सपीरियंस, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे कि जब आप आगे बढ़ते हैं बोट पीछे जाता है. क्यों? इनिशियली दिस वाज अ कंप्लीट मोमेंटम, जीरो मोमेंटम. यस और नो, आप बोट पे खड़े हैं और वो पूरा रेस्ट में, सो जीरो मोमेंटम है. आपका मोमेंटम आगे की ओर हुआ तो उसका मोमेंटम उतना ही पीछे आएगा, सच दैट टोटल मोमेंटम इनिशियली एंड टोटल मोमेंटम फाइनली रिमेन्स जीरो. अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक बलून का एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज ये बलून है, आप अगर इस बलून को फुला के रखेंगे और अचानक से छोड़ देंगे, इफ यू रिलीज इट देन यू विल सी कि बलून एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ता है. तो ये क्यों आगे बढ़ता है? बिकॉज ये इधर से एयर रिलीज कर रहा है, और जब एयर रिलीज होता है तो यहां पे एयर के पास कुछ मोमेंटम आया. इधर शुरू में मोमेंटम दोनों का जीरो था, सो नाउ टू कंजर्व मोमेंटम balloon starts moving in upward direction. And on the same principle हम लोग और भी चीजों को डिस्कस करना है ना. वो सब कुछ यहाँ है, तो एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करेंगे. ऑन द सेम प्रिंसिपल एस्ट्रोनॉट्स आल्सो मूव, है ना. मान लीजिए कि आप स्पेस में हैं और स्पेस में आप स्विम तो कर रहे हैं, है ना. यू आर नॉट फॉलिंग, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी. बट इफ यू वांट टू मूव, है ना, कहीं पे ट्रैप हो गया आप, आपको मूव करना है, तो कैसे आप मूव करेंगे? यू हैव नो फ्लोर जिस पे आप फोर्स लगाइएगा एंड इट विल आल्सो अप्लाई फोर्स ऑन यू. तो कैसे आप चलेंगे? आपको जाना है, इधर मूव करना है. सो हाउ विल यू डू दैट, है ना. आपने कुछ मूवीज में ऐसे देखा भी होगा. आप कैसे मूव कर सकते हैं? आप अपने बॉडी पे कोई जो चीज है उसको आप
थ्रो करेंगे, जिधर आपको मूव करना है उसके अपोजिट में, तो आप अपने आप उस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इधर गया और आप इधर गए, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। So that is one thing. Apart from that, rocket propulsion जो होता है, रॉकेट जो मूव करता है ऊपर की ओर, that also works on the same principle। जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, ये डायग्राम बनाया, ये सेम डायग्राम आप बना सकते हैं फॉर रॉकेट ऑल्सो। रॉकेट में जो फ्यूल होता है वो फ्यूल बर्न होकर नीचे की ओर रिलीज होता है, और एज अ रिजल्ट क्योंकि नीचे मोमेंटम मिला फ्यूल को, तो इक्वल मोमेंटम मिलेगा रॉकेट को, और रॉकेट ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, उसी तरह से आप एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैन एक्सप्लेन द एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब जब एक्सप्लोड करता है तो इट नीड नॉट एक्सप्लोड इन ओनली 1 or 2 पार्ट्स, है ना। हो सकता है ये एक्सप्लोड करे 10 पार्ट 20 पार्ट में, तो जितने भी पार्ट में ये एक्सप्लोड करेगा, फॉर एग्जांपल इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे सेंटर पे बॉम्ब था और ये इस तरह से ये 4 टुकड़ों में वो बटा, तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, इन सच अ वे कि अगर आप इनका चारों का टोटल मोमेंटम ऐड करें, इफ यू ऐड द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल दीज 4 फ्रैगमेंट्स, you will get the total momentum to be 0, क्योंकि initially total momentum कितना था? 0. So all of these applications, the varieties of applications are applications of conservation of momentum. So with this we come to the end of theory of conservation of momentum. Next topics, rest of the topics we will see in the next class.